Welcome everybody to the podcast. And our today's guest is Rohan Bharadwaj. He is a senior software engineer. So, first of all, thank you for Rohan for joining. Yeah, thank you, Ganesh, for inviting me. Okay. So, all the students who will be watching this will be this podcast will be related to general coding and all the ideas related to the coding. So, when you watch this episode completely, you will be familiar with what is important about learning about coding. Okay, so first of all, we start with Rohan. Just give us your brief introduction for everybody who's watching. Guys, my name is Rohan Bhardwaj. I have somewhere around 5 years of industry experience, and I'm working for I have mostly worked in service-based industry. Apart from that, I've even worked even worked in service-based and product-based, mixture of both the industries. So I have a well versed knowledge about how is service industry and how is product-based industry, and I've been working for past 5 years, and I worked upon a lot of technologies and a lot of industry standards I have worked upon. So if I just talk about, I worked upon legacy codes as well, which are called as the monolithic code, and then I have worked upon the very newer kind of an architecture, which is microservices, and I have been more into a web-based development only. And this is basically my background about since we are going to talk about software engineering, so this is my software engineering kind of a brief discussion background, but later on I will be just exploring about more things which Kadesh want you people to know about. Okay, so thanks for the introduction, Rohan. So इंट्रोडक्शन से आपको पता चलेगा कि उसका कितना एक्सपीरियंस है. So अभी करंट सिचुएशन पे आते हैं, अभी तुम किस कंपनी में काम करते हो एंड तुम्हारा अभी वहां पे काम क्या है, व्हाट यू डू? So earlier I was working with Ganesh, and I and Ganesh were working together in Makka Sukrati, and in Makka Sukrati I was working. कोई कंपल्शन क्या नहीं कह रहा है? हिंदी में बोला तो भी चलेगा, अपने को कंफर्टेबल. हाँ चलेगा, वो तो मैं बस ऐसे ही बोल रहा था. हिंदी में बोला. मतलब मैं और गणेश हम दोनों ही सुकराती में साथ में थे, and later on अभी मैंने recently I have changed from Sukrati and I have went to a company called Alten Calsoft Labs. So basically it is a telecom based company, and my most of the experience is into telecom, and I'm working here on SDN and FP, basically software defined networking and network function virtualization. This is main one of my core strengths which I'm going to work upon, so kind of related to virtualization. अच्छा, अभी तो तूने उस कंपनी में ज्यादा कुछ काम नहीं किया है, बट सिंस तूने बोला कि नहीं अभी स्टार्ट नहीं किया, बट मुझे पता है प्रोजेक्ट वगैरह क्या है, कैसा काम रहेगा, वो सब चीजें मुझे पता है. सो सिंस तूने बोला कि तेरा एक्सपीरियंस टेलीकॉम इंडस्ट्री में है, राइट? हाँ, मतलब टेलीकॉम में मेरे जब मेरा समवेयर अराउंड 2.5 years of experience in telecom, then some 6 months of experience in the financial domain, then 1.5 years of experience, 1.5 2 years of experience into application development, or what we call as modern architecture, or modern application development kind of. So basically इन सारे चीजों में अलग अलग क्या होता है, मतलब नॉर्मल जो अपना सर्विस बेस्ड डेवलपमेंट होता है, लोग ऐप बनाते हैं, जैसे आज तक ऐप बनाया था अपन ने, तो उसमें और इस टाइप के जो, क्योंकि नेटवर्किंग के सॉरी टेलीकॉम के ऐप उनका साइज बहुत बड़ा होता है, राइट? क्योंकि उनको बहुत नहीं साइज बड़ा नहीं होता है टेलीकॉम का. अपना जैसे कैसा होता है ना, अपना यहाँ पे जैसे सी पे ज्यादा काम होता है, मतलब लेगेसी कोड पे ज्यादा काम होता है, सी पे ज्यादा काम होगा, C++ पे ज्यादा काम होगा, सिंस इट इज मोर टुवर्ड्स हार्डवेयर, तो एम्बेडेड पे भी काम होगा, तो वो है, वो सारी चीजें रहती हैं. अपना क्या है ना, जैसे अगर हम कोई ऐप बना रहे हैं विच इज मोर ऑफ अ यूजर एंड, जैसे जो यूजर को फेसिंग है, जैसे जस्ट टू टेक एन एग्जांपल, स्विगी या जोमेटो बना रहे हैं, तो वहाँ पे प्रोजेक्ट को समझना इज वे मोर इजी. यू डोंट नीड एनी तुम्हें उस इंडस्ट्री की नॉलेज उतनी ना हो, but you will be able to code. But if I talk about telecom related things, so if I just talk about, I'm going to work upon new types of switches or routers. So अभी basically मैं AWS पे ट्रांजिट गेटवे कैसे काम करता है और पूरा ये सारी चीजें एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ. तो मतलब तुम्हें टेलीकॉम में काम करने के लिए यू नीड टू नो गुड कोडिंग एज वेल, बट यू नीड टू हैव द डोमेन नॉलेज एज वेल, कि वो काम मतलब द प्रोजेक्ट इट इज नॉट दैट मच इजी टू अंडरस्टैंड कि प्रोजेक्ट क्या करता है. इट इज नॉट लाइक कि एक यूजर होगा वो लॉग इन करेगा, अच्छा उसको खाना ऑर्डर करना है तो वो ऑर्डर करेगा, वैसा नहीं होता है. तो यहाँ पे बेसिकली अब आई जस्ट टॉक अबाउट कि मेरा पुराने प्रोजेक्ट्स थे, पुराने प्रोजेक्ट अगर इफ आई टॉक अबाउट माय लास्ट प्रोजेक्ट्स, तो हम लोग कैसा करते थे. अच्छा ठीक है, आई डोंट थिंक कि हम सिंस दीज पॉडकास्ट आर फॉर इंटर्न्स, तो आई डोंट थिंक उनको इतना पता होगा. आई डोंट नो कि वो लोग कितना AWS या GCP वगैरह एक्सप्लोर करते हैं.
बट इफ आई जस्ट टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेता हूँ, छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। हम लोग क्या करते थे, हम लोग को अगर आप मान ले अपने को अल्ट्राटेक का ऐप लॉन्च करना होता था या नया इन्वायरमेंट बनाना होता था, पूरा गेटवे सेटअप करना पड़ता था, उसके बाद फिर पूरा गेटवे के बाद एक हमें एक लोड बैलेंसर सेटअप करना पड़ता था, उसके पीछे इंस्टेंसेस लगाने पड़ते थे, ठीक है। तो यही सोच, यू हैव टू डू दीस थिंग्स यूजिंग रेस्ट एपीआईज, ठीक है। तो ऐसा काइंड समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ करके करना चाहते हैं। तो अभी तूने एक टर्म यूज किया है लेगेसी कोड, तो अभी जो लोग हाँ देख रहे हैं उसको, जिनको पता नहीं इसका मतलब क्या होता है, तो हाँ, लेगेसी कोड कैसा होता है ना, मतलब ऐसे 25 साल पहले कोई सॉफ्टवेयर बनाने का किसी का मन किया था, जैसे 25 साल पहले कोई तो लैंग्वेज में, कोई तो सपोर्टेड लाइब्रेरी, अभी जैसे मतलब इन लोगों को ये सेंट्रल रिपोजिटरी क्या होता है, मेवन क्या होता है, ग्रेडल क्या होता है, बिल्ड टूल्स का, तो ये सब नहीं पता होगा, ऐसा वो सब छोड़ देते हैं, ठीक है। ऐसा कैसे कैसे बात करते हैं, मान लो जावा जब पहली बार इन्वेंट हुई थी, तो ठीक है, तो किसी ने कहा था कि चलो जावा पे कोई मतलब एक कोई नॉर्मल से एप्लीकेशन बनाते हैं। आईबीएम ने, जस्ट टू टेक एन एग्जांपल, आईबीएम ने कोई एक जावा की एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाई, जो कि हर यूजर के डेस्कटॉप पे डालता है। उसमें क्या है, टाइम शीट भरते हैं या सिंपल कुछ भी काम करते हैं उस डेस्कटॉप एप्लीकेशन से, या वो यूजर के पर्सनल इंफॉर्मेशन को देखने के लिए। मान लो वो लेगेसी कोड पे है, लेगेसी कोड मतलब वो 25 साल पहले जो टेक्नोलॉजी आई थी उस पर बना है, ठीक है। अब वो धीरे 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 इवॉल्व होते 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 मतलब 25 साल में उसको किसी ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया, अब वो उसी पे ही है, ठीक है। तो व्हाट इज दिस इज कॉल्ड अ लेगेसी कोड। लेगेसी कोड मतलब ये एप्लीकेशन स्टेबल है, बहुत टाइम से चल रही है, ठीक है। एंड यू कैन नॉट क्विकली, अब जैसे मान लो जावा पे, अब उसको तुम्हें गो में करना है तो ऐसा नहीं कर सकते, जैसे जादू की छड़ी घुमाया तो हो गया, नहीं हो सकता ऐसा भाई, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, कहीं नहीं होता। तो तुम्हें फिर क्या करना होगा, मान लो उसको मोनोलिथिक एप्लीकेशन है, पूरा एक सेंट्रल रिपोजिटरी कोड है, एक ही जगह चलता है, अजीब सा कोड है, उसका एक ही डेटाबेस है, अब उसको ब्रेक करना है। तो वैसे तुम ऐसा एक दिन में बैठ के उसको लेगेसी कोड को नए गो में ले आते हैं, पाइथन में ले आते हैं, ऐसा ऐसा नहीं कर सकते। उसको क्या करना होता है, उसको वो समझना पड़ता है कि कैसे लिखा गया है, वो कोडिंग प्रैक्टिस को फॉलो करना पड़ता है, वो कोडिंग स्टाइल को फॉलो करना होता है, लैंग्वेज का जो पुराना पहले कैसे किया गया था उस टाइप को फॉलो करना पड़ता है, ऐसी चीजें होती हैं। मतलब दिस इज बेसिकली एग्जांपल ऑफ लेगेसी। तो अभी जैसे तूने बोला राइट, बहुत सारे तो जो पहले से पैटर्न आ रहा है कोडिंग का, तुम्हें उसको फॉलो करना हम्म। पड़ता है, राइट, ये सब। तो जब हाँ, तुम ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो तो इसका फायदा क्या है और नुकसान क्या है? इसका फायदा ये है कि तुम्हें दूसरों की कोडिंग स्टाइल को समझने का मिलेगा। इसका नुकसान ये है कि तुम पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम करोगे, तुम्हें नया यू वोंट बी वर्किंग ऑन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पे टॉक अबाउट कि मान लो कोई फ्रंट एंड डेवलप पहले जेएसपी पे हुआ था, जेएसपी सर्वलेट पे हुआ था, जेएसपी सर्वलेट वाज ये मतलब दादा परदादा का तरीका है वेबसाइट बनाने का। अब कैसा होता है कि बैक एंड अलग है, फ्रंट एंड अलग है, फ्रंट एंड बनता है रिएक्ट पे, व्यू जेएस पे, अपना ऐसा फ्रंट एंड किसी पे बन रहा है, ठीक है। अब वो जेएसपी सर्वलेट पे बेचारा बना के क्या करेगा, क्या सीखेगा वो, ठीक है प्रोजेक्ट तो आ गया, उसको टेक्निकली पता है जेएसपी सर्वलेट क्या है, बट अब आगे कोई वेबसाइट बनाएगा वो तो जेएसपी सर्वलेट पे वेबसाइट बनाएगा, वो तो बनाएगा भाई मुझे रिएक्ट पे बना के दे, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट और रिडक्स यूज कर, ऐसा कुछ तो बोलेगा ना। तो हाँ। वही है, ये मतलब ये नुकसान है कि तुम पुरानी चीज़ पे काम करोगे। फायदा ये है कि दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द जॉब, कि तुम दूसरे के कोड में छेड़ोगे, ठीक है। अपना कोड करना इज वे मोर इजियर देन लाइक किसी और के कोड को छेड़ना या किसी और के लिखे कोड को समझना, पहली चीज, और उसके बाद उसमें फिर जो चेंजेस बताए गए वो चेंजेस करना। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जो कि तुम्हें सीखने को, यू विल बी एबल टू बी बिकम अ गुड डीबगर, और कोड कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आएगी, दूसरे का कोडिंग स्टाइल समझ में आएगा, योर आई वुड से कि एनालिटिकल स्किल्स अच्छे हो जाएंगे। बट ड्रॉबैक यही है कि तुम पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम करोगे। तो अभी यूजुअली बड़ी बड़ी कंपनीज में होता नहीं लेगेसी वाला, जैसे एमडॉक्स है, एक्सेंचर है, डिपेंड्स अपॉन हाँ बड़ी कम, हाँ अब इफ आई टॉक अबाउट स्टार्टअप्स, तो उनके पास क्या लेगेसी होगा, वो अपना लेगेसी बनाने जा रहे हैं। राइट अब भाई। स्विगी का अपना लेगेसी बन चुका है, स्विगी की ऐप है, अब वो ऐसे ड्रास्टिकली उनका जैसे लॉगिन मॉड्यूल किसी, मान लो जस्ट टू टेक एग्जांपल, लॉगिन मॉड्यूल नोड जेएस में लिखा हुआ है, अब नोड जेएस में कोई ऐसा बग आ गया कि कोई पेनिट्रेशन अटैक कर सकता है, तो अब ऐसे वो नोड जेएस को एकदम से जावा में नहीं बदल पाएंगे ना, वो एक लेगेसी हो चुका है, लॉगिन मॉड्यूल खराब हो गया तो बेचारा कोई स्विगी में लॉग इन नहीं कर पाएगा। तो ऐसा मतलब नए स्टार्टअप्स वगैरह में यू वोंट सी लेगेसी कोड, सिर्फ जस्ट टॉक अबाउट लेगेसी कोड काम लगा तो मोस्ट प्रोबब्ली यू विल फाइंड लेगेसी कोड इनटू बैंकिंग एप्लीकेशंस, या फाइनेंशियल डोमेन में आप जाओगे तो बैंकिंग की जो एप्लीकेशन, जस्ट टॉक अबाउट की मान लो पीएनबी ने पीछे से 25 साल पहले कोई नेट बैंकिंग मतलब ऑनलाइन करने के लिए उन्होंने अपना सिस्टम करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर लिया था, वो लेगेसी हो गया है। तो वो होगा बेसिकली पुराने तरीके, पुराने बड़ी कंपनियां, आईबीएम होगी, टीसीएस हो गई, या एक्सेंचर हो गई, उनके पास कोई बैंकिंग एप्लीकेशंस हैं जो कि कोई बैंक यूज कर रहा है, वो लेगेसी होगा। नया कोड विल नॉट बी अ लेगेसी, इट विल बिकम अ लेगेसी आफ्टर 25 ईयर्स या
after a very long time. The 25 years just like benchmark I'm taking up, but ऐसा जरूरी नहीं है. तो तूने अभी कुछ एग्जांपल दिए राइट, तो अभी तूने काफी एमएनसीज में काम किया राइट, और सिंस अभी हम हाँ, हमेशा. पॉजिटिव और नेगेटिव्स के बारे में बात की, लेगेसी कोड और इन सब चीज से रिलेटेड, तो वहाँ पे प्रोजेक्ट असाइनमेंट कैसे होता है? क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे ना एमएनसीज में ही प्लेस होते हैं जैसे वो कॉलेज से पास आउट होते हैं, तो हम सबको लगता है कि मेरे को एआई पे काम करना है, मशीन लर्निंग में काम करना पहले है। पहले पहला चीज तो मतलब ऐसा मेरे को ये तो पता है कि आजकल लाइक every other guy in the college is working on AI ML, but to be honest, there are not that much jobs in AI ML. Like लोग पागल तो हैं AI ML के लिए, and no doubt AI ML is the future and lot of things are going to change because of that. But I don't think industry में उतना jobs हैं अभी I don't think there are, like in India I couldn't see like जितनी jobs product development में है या like जितनी jobs like basic product development में उतनी AI ML में तो I don't see. ओके, तो अभी सिंस तूने बोला कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ज्यादा स्कोप है, वी नीड मोर डेवलपर्स इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट एरिया, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन जनरल क्या होता है? क्योंकि जब आप कॉलेज में सीखते हो तो बच्चों को सिर्फ बहुत नैरो चीजें सिखाई जाती है, ये तेरा सर्चिंग एल्गोरिदम है, ये तेरा सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, ये तेरे को याद रखना है क्योंकि जॉब में तेरे को पूछेंगे इंटरव्यू में। बट जब नहीं वैसा, हाँ, प्रोडक्ट डेवलपमेंट बता क्या होता है? Product development is just take example of कि ठीक है, if I just take an example of what basically a product is, ठीक है, if I take about like let's take up example with Geeks for Geeks, like people will be very much aware about what is Geek for Geeks. तो Geek for Geek is a product, ठीक है. If I talk about उनका product, वो कैसे product है, देख पहला तो वो वहाँ पे content देता है सारा, people can go, they either create their own content or they read content from Geek for Geeks, एक चीज ये होगी. दूसरा, if you could see, Geek for Geeks also provide internships and other technical trainings. तो वो एक तरह से दे आर अपसेलिंग देयर थिंग्स, ठीक है. दिस इज काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट. सो प्रोडक्ट बेसिकली डजंट मीन कि यू आर सेलिंग सम कमोडिटी, बट यू आर सेलिंग सम वैल्यू एज वेल, इज आल्सो अ प्रोडक्ट. तो Geek for Geek is just taking example is very like near to interns, like yeah, near to students के लिए अगर मैं example लूँ, Geek for Geeks is one of the product. If I like kind of a product, and developing website for Geek for Geeks is kind of a product development. तो उनकी जो भी requirement हो, just take an example, Geek for Geeks wants to like पुणे में सारे colleges में they are offering that they are like providing online classes, and using that they will be teaching Java or some other programming language. So this is one of the way of they are selling their product, because it will run revenue for Geek for Geeks. This is one of the product if I talk about. Basically, it's selling rice, dal, shampoo is not exactly product. Like that is also a product, but that is a commodity, but not exactly selling a commodity is product. If I just talk about Swiggy or Zomato, they are not selling something, but they are providing services via their applications. So this is also kind of a product development kind of a thing. Another thing is like if I just take about like very like I guess people are very much aware of Udemy or LinkedIn Learning or बहुत सारी like e-learning websites हैं. So these are basically providing your content via videos or via online lectures. Yeah, if I talk about Educra, they are providing through lectures or like whatever course you want to opt in. So this is also a product. So they are providing you content, but you have to pay for that content, and that content and that paying thing will bring them revenue. So one of the things is this. And like if I just talk about अगर Udemy पे हमें website, Udemy के लिए website बनानी है, तो there are a lot of things are involved. अब हर रोज उस पे कोई नया creator आ जाएगा, उसको अप्रूव करना है कि वो सही क्रिएटर है कि नहीं, कि ऐसी कॉलेज का स्टूडेंट आ गया वो थोड़ी ना कंटेंट डाल सकता है Udemy पे और सेल करने लगेगा. और उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें होंगी. दिस इज वन ऑफ द प्रोसेस आई एम टेलिंग कि कोई कंटेंट क्रिएट करने के लिए आता होगा तो उसको वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते होंगे, तो उसके लिए उन्होंने कुछ बनाया होगा Udemy पे जो हमें नहीं दिखता है बट उसे दिखता होगा. दिस इज वन ऑफ द थिंग. अनदर थिंग इज कि Udemy पे मान ले मैंने अपना कंटेंट डाला, उसके बाद वो कंटेंट अप्रूव करने के लिए टीम होती होगी, उनके लिए एक पोर्टल होता होगा, वो देखते होंगे. दीज आर बेसिकली बैक फेसिंग एप्लीकेशन जो कि उनकी प्रोडक्ट टीम या उनकी लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम या ऑपरेशंस टीम यूज करती है. अनदर थिंग इज जो हम देखते हैं. इफ आई टॉक अबाउट, मान लो मुझे GCP पे कुछ सीखना है, if I like exploring data lakes in GCP, if I'm exploring if I want to learn something about GCP and I want to search a course on Udemy, I will go and search on their portal. तो मुझे वहाँ पे 10-15 क्रिएटर्स का डेटा दिखेगा. So ये एक डेवलप करना, दिस इज काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट. और सिर्फ ये वेबसाइट बनाना इज नॉट बेसिकली अच्छा जावास्क्रिप्ट का कोड लिख दिया, रिएक्ट का कोड लिख दिया, रिडक्स यूज कर लिया तो फ्रंट एंड बन गया. फ्रंट एंड तो बन गया, अब पीछे से इतना सारा डेटा है. मतलब वर्ल्ड मान लो 50,000 क्रिएटर्स हैं जो रिएक्ट पे डेटा दे, रिएक्ट के लिए जस्ट टेक एन एग्जांपल, फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए मतलब तुम्हें डेटा मतलब कंटेंट दे रहे हैं कि कोर्सेज दे रहे हैं. अब तुम सर्च करोगे मुझे फ्रंट एंड डेवलपमेंट, लाइक यू वांट टू लर्न फ्रंट एंड डेवलपमेंट ओवर देयर लाइक देयर ग्लोबल सर्च, तो तुम्हें
पेजिनेटेड फॉर्म में बहुत सारा डेटा दिखाएगा, अब वो कैसे मैनेज होता है या वो डेटा लेक कैसे मैनेज होता है, तो देयर इज लॉट ऑफ इंजीनियरिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं. सो बेसिकली यू विल बी लर्निंग दोस थिंग्स. ठीक है. This is basically a gist of product development. Like this is non-technical discussion, and doing all things is very much technical. Yes, so हम लोग उसके टेक्निकल पार्ट पे आएंगे. So जो नॉन टेक्निकल पार्ट है उसमें भी उससे रिलेटेड इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट होता है, राइट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. हाँ, कहते हैं कि तुम्हारा इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्या होता है, उसके बाद डिजाइन क्या होता है, तुम्हारा बेसिकली यू आर रनिंग अबाउट क्या होता है, राइट, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स. हाँ. तू किसी एक छोटे से एग्जांपल से बता सकता है कि हाउ दीज आर रिलेटेड, लाइक रियल टाइम एग्जांपल, जो तूने किसी कंपनी में काम किया हो और जिसमें ये सारी चीजें प्रॉपर्ली रियल टाइम लाइक एक्चुअल में यूज की हुई है, क्योंकि बहुत सारे मैं लाइक यूज करता रहेगा ये. मैं सिंपल लेट्स टॉक अबाउट एसडीएलसी कैसे काम करता है. ठीक है, सबसे आसान वही है. ठीक है, एसडीएलसी मॉडल इज लाइक अ वाटरफॉल मॉडल, मतलब एक के बाद एक के बाद एक. जस्ट टेक एन एग्जांपल, मान लो हम लेट्स टेक एन एग्जांपल की like this intern labs, अभी तो हम like we are doing it on YouTube. ठीक है, and YouTube is like a platform for us. We are using some third party platform. Now what we have to do, अब मान लो गणेश को ही अपना एक इंटर्न लैब्स करके पॉडकास्ट चलाना है, बट उसको किसी थर्ड पार्टी के लिए सुन नहीं, मतलब ना ही स्पॉटिफाई पे उसको डालना है, ना ही यूट्यूब पे डालना है. वो पॉडकास्ट अपनी वेबसाइट पे बनाएगा, वहाँ पे वीडियोस डालेगा, वहाँ पे जाके बच्चे अपना पॉडकास्ट देख सकते हैं. दिस इज वन ऑफ द वे. मेरे पास एक क्लाइंट आता है, वो मेरे पास एक रिक्वायरमेंट्स लेके आता है. दिस इज बेसिकली कॉल्ड रिक्वायरमेंट गैदरिंग. तो मैं क्या करूँगा, क्लाइंट की बात सुनूंगा, या वो कुछ एफआरडीज देगा. बेसिकली एफआरडीज आर लाइक वो एक डॉक्यूमेंटेड मुझे डॉक्यूमेंट देगा, रिक्वायरमेंट सारी डॉक्यूमेंटेड होगी उसमें कि उसको क्या क्या चाहिए, व्हाट आर हिज एक्सपेक्टेशंस, कि उसकी वेबसाइट कैसे चलनी चाहिए, उसकी वेबसाइट पे क्या क्या होना चाहिए, वो क्या क्या एक्सपेक्ट करता है. तुम उसको पढ़ोगे, समझोगे, उसके बेसिस पे तुम कुछ एस्टिमेशन दोगे. लाइक बेसिकली एवरीथिंग हैज अ कॉस्ट. ठीक है, यू वोंट बी डूइंग इट फॉर फ्री. Companies are running or you are working, that is basically for salary, and companies are working for revenue. You will be working for salary and company will be working for revenue. और ये रेवेन्यू कैसे आएगा, यू विल बेसिकली टेलिंग देम कि ओके इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स है, अच्छा इसको करने में तो मुझे 1 साल लगेगा, 1 साल में मेरे साथ 10 लोग काम करेंगे, इतना पैसा लगेगा. दिस इज बेसिकली द पार्ट विच वेयर द प्रोजेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम. ओके, द टीम सेटअप पार्ट विल स्टार्ट बेसिकली आफ्टर दैट. ओके, so basically the first part is just going, if let's talk about only the technical part, let's leave out revenue and all those things. तो हमारा कैसा पार्ट रहेगा, we will be just going through the functional requirements, या हमारी कैसी requirements है, क्लाइंट को क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो क्या क्या करना चाहता है उसके थ्रू. ठीक है, और वो सारी चीज़ें पढ़ने के बाद you will basically do a kind of an estimation, या उसको break down करोगे. You will be further like if a requirement is very long या बहुत बड़ी है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करोगे. यू विल बी टेलिंग क्लाइंट कि ओके हम ये सारी चीज़ें के लिए ये कॉस्ट आएगा, ये टूल्स यूज करेंगे. देन देयर बिगिंस अ फेज कि यू हैव टू बिल्ड ट्रस्ट विद द क्लाइंट. सो यू विल बेसिकली प्रोवाइड अ स्मॉल पीओसी. पीओसी इज बेसिकली प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, यू कैन डू दिस थिंग. तो क्लाइंट का एक छोटा सा मॉड्यूल बना के, या कुछ छोटा सा एक सैम्पल या डेमो काइंड ऑफ, लाइक छोटे, मान लो तुम्हें बड़ी ऐप का एक छोटा सा डेमो दिखाना है कि अच्छा देखो ऐसे ऐसे दिखेगा जब पूरा बन जाएगा. तो तुम बेसिकली एक डेमो काइंड ऑफ लाइक सब कुछ उसमें फिक्स्ड रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, डायनामिक डेटा नहीं रहेगा, बस ऐसे एक वीडियो चला के दिखा दोगे अपनी ऐप वेबसाइट पे. एक छोटा सा पीओसी दोगे. वंस द पीओसी गेट अप्रूव, तुम उसके बाद क्या करोगे, यू विल स्टार्ट विद लाइक प्रॉपर एस्टिमेशन कि अच्छा मुझे पूरा ऐप बनाने में इतना टाइम लगेगा और ऐसा ऐसा रहेगा, इतना इतना वो रहेगा. देन बेसिकली उसके बाद फिर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है. डेवलपमेंट विल गो टू टेस्टिंग, टेस्टिंग के बाद यूएटी, यूएटी के बाद इट विल गो टू प्रोडक्शन. बस ऐसे, मतलब दिस इज द एसडीएलसी वे, बट दिस इज नॉट यूज्ड राइट नाउ. So जो मैंने बताया, requirement gathering, then testing, like development, testing, UAT, production, it rotates into like sprints of 2 weeks. Sprint is basically a span of time where like this entire SDLC cycle is repeated in a week or a 2 weeks or a month's time, depending upon the like product requirement कि कितना बड़ा sprint रखना चाहिए. तो वैसे ही रहता है. Okay, so basically तो बच्चों के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है वो भी पढ़ना इम्पोर्टेंट है, राइट, कंपेयर बहुत इम्पोर्टेंट है. मतलब अभी हम हल्के में लेते हैं, बट वही सारी प्रैक्टिसेस तुम्हें यहाँ आके फॉलो करने पड़ेंगे. सो अभी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के केस में हम लोगों ने ये नॉर्मल तो देख लिया, राइट, नॉन टेक्निकल पार्ट. नाउ इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल पार्ट, अभी जैसे कि इंटरव्यूज में हमने देखा था, राइट, जब तुम किसी को नॉर्मल सर्चिंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम पूछे वो तो बता देगा, या फिर तुम इसको ऑप्टिमाइज करके देखा इस दो फॉर लूप को, वो तो कर देगा. बट तुम वही उसको बोलोगे, मान ले तेरा ट्विटर जैसा कुछ एप्लीकेशन बनाना है तुझे, अब उसको मिलियंस ऑफ हिट आ रहे हैं,
अब तू इसको कैसे मैनेज करेगा? तो वो उसको समझ में, उसको तो मैनेज करना समझ में नहीं आता, बिकॉज उसको प्रोडक्ट कैसे काम करता है वही नहीं पता। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि बच्चों ने कॉलेज में ऐसे एटलीस्ट लास्ट ईयर में ऐसी क्या चीजें पढ़नी चाहिए या फिर कौन से छोटे मोटे प्रोजेक्ट करने चाहिए जैसे जिससे उनको आइडिया है कि एक्चुअल में ऐप बनता कैसे है? हाँ, तो देखो, आई गेस गिविंग दैट मच एक्सपोजर गणेश, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। बट हाँ, अगर somebody is like looking into कि हाँ पूरा प्रोडक्शन पे कैसे चीजें चलती हैं, या लाइक इफ आई जस्ट टॉक अबाउट कि अगर ठीक है तुम्हारे कंप्यूटर पे एक बैकएंड चल रहा है, उस पे कुछ 100 हिट्स आ रही है, दैट विल वर्क फाइन। अब वो 1 लाख हो जाएंगी तो तुम्हारा कंप्यूटर बंद पड़ जाएगा भाई 1 घंटे बाद। अगर अगर हर लाइक रिक्वेस्ट पर मिनट इज लाइक 1 लाख, ठीक है, तो दैट इज अ टू मच, लाइक बहुत ज्यादा, लाइक तुम्हारा रेट ऑफ रिक्वेस्ट हो गया। तो इन दैट केस लाइक कुछ रेट लिमिटर, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं उसके पीछे, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट कि कॉलेज स्टूडेंट्स को वांट दीज काइंड ऑफ एक्सपोजर, देन दे कैन गो इनटू लाइक लो लेवल सिस्टम डिजाइनिंग, एंड और ज्यादा चाहिए देन दे गो इनटू लाइक हाई लेवल सिस्टम डिजाइनिंग। लाइक दिस इज द लेटर पार्ट ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो कि उन्हें करना चाहिए। But before that, they should like basically focusing upon their like data structure and algorithm wala skill. This is like there should be this should be their main focus. मुझे तो ऐसा ही लगता है। हाँ नहीं, वो तो सही है, मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि प्रोजेक्ट्स ज्यादा करने चाहिए कि नहीं, बिकॉज वो हाँ, क्यों, डेफिनेटली पता होना डेफिनेटली, जब तक प्रोजेक्ट्स नहीं चाहिए। करेंगे तब तक उन्हें, देखो, सबसे किसी को अगर मैं बोले इंसर्शन शॉट लिखना है या मर्ज शॉट का कोड लिखना है, भाई सब लिख लेंगे आराम से, ठीक है, नहीं समझ में आएगा इधर उधर टेप टाप के कर लेंगे, ठीक है। राइट। बट एक्चुअल चैलेंज कब आएगा कि जब तुम मान लो तुम एक छोटा सा कोई वेबसाइट बना रहे हो या एक छोटा सा कोई ऐप बना रहे हो, या आजकल बहुत फेमस है ना, क्या कहते हैं, क्या कौन सा वो छोटा सा कंप्यूटर का नाम क्या है, सब उसी पे बनाते हैं ना, कुछ कुछ RFID लगाते हैं, या क्या नाम है, कंप्यूटर अरे कौन सा पाया, 1 मिनट रुकना। सर्च कर ले। रुक तो। हाँ, रास्पबेरी पाई। हाँ, पाइथन का लाइब्रेरी। हाँ, मतलब नहीं, पाइथन का लाइब्रेरी, रास्पबेरी पाई बेसिकली स्मॉल चिप्स लाइक बेस, मतलब छोटा सा कंप्यूटर ही होता है, ठीक हाँ है। तो लोग लाइक बहुत सी चीजें एक्सप्लोर करते हैं, तो लाइक जस्ट टेक एन एग्जांपल, चलो ठीक है, कहीं पे हार्डवेयर पे काम होता है, मान लो तुम सेमीकंडक्टर मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हो, वहाँ पे मान लो तुम्हें डायरेक्टली एम्बेडेड पे काम करना है, तो वहाँ पे यूज होगा वो सारी चीजें। तो वो एक अलग चीज हो गई, तो वो भी कर सकते हैं बेसिकली। ट्राई एक्सप्लोरिंग एंड डूइंग थिंग्स, सिर्फ जो किताबी ज्ञान है वो नहीं, बट अपने हिसाब से भी कुछ चीजें करो। लाइक जस्ट टू टेक एन एग्जांपल, अगर तुमने पढ़ा कि भाई एल्गोरिथम्स, ये सर्चिंग एल्गोरिथम या सर लाइक उसका रियल टाइम यूसेज देखो कि कहाँ पे क्या यूज होता है, लेकिन एक फुल टेक्स्ट सर्च बनाने की कोशिश करो। जैसे अमेजोन पे जो तुम्हारा सर्च बार आता है, दैट इज अ काइंड ऑफ अ फुल टेक्स्ट सर्च, वो कैसे काम करता है, वो सारी चीजें सीखो, हाँ, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। मैं इसके बारे में बात कर रहा था कि एटलीस्ट तुम जब तुम कुछ खुद से बनाने का ट्राई करोगे ना प्रोजेक्ट्स, हाँ, सिंस तुम्हारा प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए यूनिक होगा, उसमें जो कुछ कुछ चैलेंजेस ऐसे आएंगे, कुछ सिचुएशंस ऐसे आएंगी जिसका जवाब तुमको इंटरनेट पे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो किसी और को एग्जैक्टली, आएगा वो नहीं। तुम्हें एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो बेसिकली वही सारी चीजें हैं। मान लो, जस्ट टू टेक एन एग्जांपल, मान लो तुम कुछ कर रहे थे अपने प्रोजेक्ट में, तुम्हें सोल्यूशन मिला ही नहीं, एंड दैट कैन वेरी मच हैपन, रियल लाइफ में भी होता है। एंड यू जस्ट पोस्टेड दैट सोल्यूशन ऑन टू स्टैक ओवरफ्लो, स्टैक ओवरफ्लो किसी फेसबुक के इंजीनियर ने मस्त सा आंसर या मस्त सा सोल्यूशन दे दिया, ठीक है, देन दैट विल गिव यू अ न्यू पर्सपेक्टिव इनटू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कि हाँ भाई, ये चीज तो मैं ऐसे कर सकता था, अच्छा ये चीज मुझे सीखने को मिली, एंड दिस वे योर लर्निंग विल गेट एनहांस्ड। Like just reading data structure and algorithm and just practicing lead code, yeah, just practicing code chef will not make you a great engineer, but working on real time practical projects definitely will make. और एट द एंड कैसा है ना, सबका मेन एम तो एक ही है कि तुमको जॉब लेना है, तो जॉब लेने के नहीं, लिए सबका मेन एम जॉब लेना नहीं है, सबका ऐसा मेन एम अभी ऐसा हो गया, लिंक्डइन प्रोफाइल चमकना चाहिए, 4 स्टार कोड शेफ कोडर होना चाहिए, ऐसा लीड कोड में सारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन हो जब जाना चाहिए, अभी ऐसा है। नो डाउट वो अच्छी चीज है, बट उसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो करना जरूरी है। हाँ वही। दैट विल बेसिकली टेल कि तुम्हें कितना प्रैक्टिकली चीजें आता है, सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम से नहीं होता है। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वही दैट विल बी योर बेस, बट उसको यूटिलाइज कैसे करना है, कहाँ यूज करना चाहिए, वो सारी चीजें तुम्हें प्रोजेक्ट्स में या कुछ खुद से बना के छोटे छोटे एप्लीकेशन या लाइक वेब डेवलपमेंट या कुछ भी करना चाहिए। अगर तुम AWS पढ़ रहे हो, इंफ्रा साइड पे इंटरेस्ट है, तो AWS पे वो सारी चीजें करो। डेवऑप्स में इंटरेस्ट है तो लाइक डेवऑप्स से रिलेटेड चीजों को पढ़ो, उनको ट्राई आउट करो, GCP, AWS, Azure, कहीं पे भी।
और बहुत फ्रीवेयर अकाउंट्स मिलते हैं यार AWS GCP तो 1 साल के लिए फ्री मिलता ही है लगभग, मतलब कुछ पॉइंट्स तक। AWS में बहुत सी फ्री टियर चीजें होती हैं, उनको यूटिलाइज करो। तो दिस इज जस्ट एन एडवाइस। और इसका लाइक तुमको इंटरव्यूज में बहुत फायदा होता है ना, बिकॉज अब तुमको आदत लग गई है कि अननोन क्वेश्चंस के साथ डील करने की। जब तुम एक्चुअली इंटरव्यू में देने जाओगे, जब तुमको रैंडम कोई अननोन सा क्वेश्चन पूछेगा ना जिसका जवाब नहीं है, एटलीस्ट तुमको थोड़ा तुम्हारा बैक एंड नॉलेज कुछ पीस टुगेदर करके तुम कुछ तो सोल्यूशन प्रेजेंट कर पाओगे। बट इफ यू जस्ट देयर ब्लैंकली कि मेरे को बस 4 चीजें आती है, अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं इसको कनेक्ट कैसे करूं, तो तुम ब्लैंक कर जाते हो वहां पे। बस इससे अच्छा अगर तुम लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस है कि ऐसे ऐसे वियर्ड से चीजें आ सकती हो, इस टाइम पे मैंने ये किया था, तो वो तुमको हेल्प कर सकता है। तो लाइक प्रोजेक्ट्स ज्यादा से ज्यादा करना ज्यादा हेल्पफुल है। मतलब तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस वगैरह वो तो है ही, बट एट दिन अब जब मेरा एक्सपीरियंस यही था, जब मैं ये करिकुलर को कर रहा था ना, मेजोरिटी बच्चे यही देख के आ रहे थे कि इसमें जॉब और इंटरव्यू ये दो वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो जब तुम कुछ भी सिखाने जाओगे ना, उनके देर उनका सीधा घूम के वहीं पे आ जाता है, अच्छा इसका इसमें क्या फायदा है, मेरे को जॉब जॉब के लिए जब इंटरव्यू देने जाऊंगा तो उसके लिए क्या फायदा होगा मेरे को उसका। बट तो मैं प्रोजेक्ट्स का इसलिए बता रहा था कि अगर एट द एंड तुम्हारा एम यही भी है कि तुमको जॉब ही लेना है, तो भी इट विल हेल्प। तो ये बोला आपने। सो अभी देख, हाँ अपन ने बहुत सारे इंटरव्यू लिए, राइट, मैंने भी लिए, तूने भी लिए। तो तेरे को क्या समझ में आया है कि लाइक मेजोरिटी में क्या, मेजोरिटी बच्चों में क्या प्रॉब्लम होता है कि हाँ ये सब में मिलता है मेरे को प्रॉब्लम। मेजॉरिटी बच्चों मुझे यही प्रॉब्लम लाइक समटाइम्स लाइक एज एन इंटरव्यूअर मैं जो व्हाट आई एक्सपेक्ट इज कि बेसिकली योर बेसिक शुड बी क्लियर। तो कई बार ऐसा होता है कि दे आर वेरी गुड कोडर बट इफ आई टॉक अबाउट बेसिक कंसेप्ट, तो वो वहाँ पे भी लोग लड़खड़ा जाते हैं कि यार ये नहीं पता है मेरे को। अच्छा ये लाइक इफ आई जस्ट टॉक अबाउट प्रैक्टिकली oops कंसेप्ट के, जस्ट टेक एन एग्जांपल इनहेरिटेंस। इफ यू हैव टू लाइक जस्ट इनहेरिटेंस की डेफिनेशन नहीं, वो एग्जैक्टली तुम कोड में कैसे यूज करोगे। फिर टॉक अबाउट जावा रिलेटेड कोई एक पैटर्न ले लिया मैंने, डिजाइन पैटर्न, और उसमें इनहेरिटेंस का क्या यूज केस आ रहा है, तो वो सारी चीजें मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि लाइक दैट शुड दोस बेसिक्स शुड बी क्लियर टू स्टूडेंट। दिस इज लाइक वन माय नंबर 1 रिक्वायरमेंट। अब उसके बाद अगर बच्चा इन सब चीजों में अच्छा है, हिज लाइक बेसिक्स आर वेरी स्ट्रांग, हिज पिलर्स आर बेसिक पिलर्स आर वेरी स्ट्रांग, उसे काफी अच्छे से आती है ये सारी चीजें, देन आई मूव टूवर्ड्स लाइक जो थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग है या एडवांस डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स है, लाइक टू मूव टूवर्ड ट्री या लाइक उससे रिलेटेड चीजें वो भी स्ट्रांग है, देन आई मूव टूवर्ड्स लो लेवल डिजाइनिंग। तब आई विल जस्ट टॉक अबाउट हाँ ठीक है, ही हैज बेसिक बैकग्राउंड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलप कोडिंग, उसको बेसिक कोडिंग आता है, लेट्स टॉक अबाउट बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसको ये सारी चीजें या लो लेवल डिजाइनिंग आता है कि नहीं। देन आई टॉक अबाउट अगर इफ इट इज नॉट लाइक ही इज नॉट कंफर्टेबल विद लो लेवल डिजाइनिंग या नहीं कर पा रहा है, देन आई डोंट एक्सपेक्ट लाइक ठीक है इट्स ओके, like I can stop it here, I can select him, but अगर वो बता सकते हैं then it's very well and good, I like that way he will be able to excel very much। तो ये बहुत कॉमन सा आंसर होता है right? कि उसको बेसिक आना चाहिए, उसको बेसिक आना चाहिए। लाइक व्हाट इज बेसिक? बेसिक बेसिकली ऐसा है कि कोई तुमसे पूछे कि मतलब लोग क्या करते हैं, अब जावा में 50 तरह के पैलिंड्रोम कर लो, ये कर लो वो कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जस्ट टू टेक एन एग्जांपल, इफ आई टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट के जो फंडामेंटल्स हैं जिसके ऊपर जावास्क्रिप्ट बनी है, गूगल V8 इंजन क्या है, जावास्क्रिप्ट में क्लोजर्स क्या होते हैं, आई एम जस्ट टेकिंग ऑन वेरी लाइक I'm just talking about JavaScript because in nowadays college students are like madly following JavaScript and Python only। और उसके अलावा भी और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, if I talk about like Java भी है, and then like C है, C++, मतलब C तो सभी पढ़ते ही हैं, C++, but I'm just taking example of JavaScript is like if it's just giving an interview and like you're selling my favorite language JavaScript, then the interviewer must be expecting कि हाँ उसको भाई JavaScript के concepts clear हों। like कहीं अगर तुम्हारे JavaScript के concepts clear हैं, then basically your programming या coding concepts are clear। तो वो सारी चीजें होती हैं। अब जावास्क्रिप्ट में बहुत सारी चीजें होती है, क्लोजर, जस्ट क्लोजर आई एम टेकिंग एग्जांपल, क्लोजर हो गया, लेट वेर कॉन्स, क्या नए ES6 के जो लाइक स्टैंडर्ड्स आए हैं वो सारी चीजें हैं, या ऐसे मतलब ऐसे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं। जावास्क्रिप्ट में दिस क्या होता है, दिस का कंटेक्स्ट कहाँ तक होता है, वो सारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। कहीं ना कहीं दीज बेसिक्स आर कनेक्टेड विद योर बेसिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स की, जो कि हमारा ओप्स होता है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का प्रिंसिपल्स होता है, या अभी जावास्क्रिप्ट में क्लासेस और ये सारी चीजें आ गई हैं, वो सारी चीजें आपको पता है कि नहीं पता। आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल ऑफ जावास्क्रिप्ट,
this can happen with other programming language, and if are not like this is related to programming language, these basics or yeah ये are like ये चीजें are expected if you tell like my program I'm very strong in this particular programming language. Okay, if you are not strong in any programming language, you can code in any language given some time and liberty. Then basics directly go towards data structure and algorithm. Like you should be able to solve programs. Yeah, like if you talk about data structure and algorithm, like if I just take an example, you're given like एक बड़ा सा आपको like array दे दिया, उसको sort करना है. This is not only like this is like a problem to solve, but this is very generic. इससे और थोड़ा सा ऊपर if I talk about real life problems की यार आपके पास एक बड़ा सा JSON है, JSON ऑब्जेक्ट है. अब JSON ऑब्जेक्ट में बहुत सारी कीज हैं, ठीक है. अब मान लो उस मतलब दिस इज अ जेनरिक JSON ऑब्जेक्ट जो आपको गूगल मैप से मिलता है, ठीक है. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ एन एप्लीकेशन प्रॉब्लम जो आपसे कोई पूछ सकता है, आपको उसको आंसर कैसे करना है, ठीक है. अब उसमें बहुत सारी कीज हैं, ठीक है. एंड दिस JSON कैन बी इंडेंटेड टू एनी लेवल, ठीक है. मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, ठीक है. मतलब आपको वो ऑब्जेक्ट निकाल लाइक आपको मैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट दे दूंगा, बट मुझे पता नहीं है कि ये इंडेंटेड किस लेवल तक है JSON ऑब्जेक्ट और ये कहाँ पे मिलेगा. तो इसमें आपको सर्चिंग लगानी, तो आप कैसी अप्रोच फॉलो करोगे. दिस इज एन जस्ट एग्जांपल आई एम गिविंग. ऐसा जरूरी नहीं है रियल लाइफ में हो, बट इसको सॉल्व करने के लिए आपकी अप्रोच क्या है. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि यू कैन गिव अ सॉल्यूशन, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि यू आर गिविंग मी अ गुड अप्रोच या यू आर गिविंग मी अ पॉजिटिव अप्रोच कि हाँ इस वे से अगर मैं करता हूँ देन आई विल बी एबल टू फाइंड अ सॉल्यूशन. So basically basic varies from subject to subject, right? तुम क्या हाँ आंसर दे रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा बेसिक क्या जज किया जाएगा. हाँ बेसिक क्या है, बेसिक एग्जैक्टली. It totally depends upon interviewer as well. Me as an interviewer is more interested into कि how good you are analytically, how good is your reasoning, या आप कैसे चीजों को solve कर लेते, ठीक है. I don't only judge upon data structure, I also judge upon your day to day, like what I expect myself from the project, and you if you can do that, then also like if you take example कोई intern मेरे पास आता है and he says कि हाँ मैंने APIs बनाई है, मैंने REST APIs या SOAP APIs बनाई है, then I basically ask him कि उसके REST के बेसिक्स क्लियर हैं कि नहीं, REST APIs कैसे काम करती हैं ये पता है कि नहीं, कितने तरह के मेथड्स होते हैं, CRUD ऑपरेशंस क्या होते हैं, और कहाँ पे क्या API यूज करनी है, ये पोस्टमैन यूज कर सकता है कि नहीं अच्छे से. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि व्हाट बेसिक्स डिपेंड्स फॉर मी. मेरे लिए ना इंटरव्यू लाइक अगर कोई मेरे को पूछे ना कि एक लाइन में इंटरव्यू क्या होता है, सो इंटरव्यू लाइक जस्टिफाइंग योर रेज्यूमे टू योरसेल्फ. तुमने जो हाँ लिखा है एग्जैक्टली. वो सही लिखा है क्या उसमें, बस तुम खुद को हाँ जस्टिफाई कर. अब कोई बोलता है भाई नहीं, बेसिकली देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिक्स आर लाइक अगर इफ आई टॉक अबाउट कोर बेसिक्स, तो भाई बेसिक स्टार्ट होती है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम से. आपको वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. डेफिनेटली इट विल बी रिक्वायर्ड एट सम पॉइंट ऑफ इन योर करियर, ठीक है. बट इफ आई जस्ट टॉक अबाउट डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के बाद अब कोई कहता है भाई मैं डेटा साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, तो अब मुझे पता उसको पता होना चाहिए भाई ETL टूल्स क्या होते हैं, कौन कौन से तरह तरह की ETL टूल्स मार्केट में हैं, या उसको पता होना चाहिए कि भाई GCP पर पाइपलाइन कैसे बनाएंगे, डेटा लेक कैसे बनाएंगे. पता नहीं तो कम से कम थोड़ा तो जस्ट या कुछ कभी एक्सप्लोर करा हो उसने. अगर वो कहता है कि मेरा इंटरेस्ट है कह रहे हो, तो भाई इंटरेस्ट प्रूव करो ना. है बस लिखने से नहीं होता है. जस्ट टू लाइक मेक अ रेज्यूमे यू कैन नॉट मेंशन एवरीथिंग ऑन. ऐसे तो मैं सारी टेक्नोलॉजीज मेंशन कर दूंगा, हाँ मैंने सब कुछ देखा है, कभी कभी पढ़ा था, तो दैट वोंट आई वोंट बी एबल टू जस्टिफाई माई सेल्फ. तो दैट इज वन ऑफ द थिंग. सो जस्ट बी ट्रू टू योर रेज्यूमे, व्हाटएवर यू मेंशन, बी इट लाइक आपको सिर्फ दो ही लाइक ऐसा आजकल ऐसा हो गया ना कि हाँ रेज्यूमे बहुत अच्छा होना चाहिए. हाँ रेज्यूमे अच्छा होना चाहिए, बट रेज्यूमे पे अच्छा होने के साथ यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई रेज्यूमे. ऐसे सब कुछ रेज्यूमे पे डाल दिया, गिटहब का रेपोजिटरी डाल दिया, सब डाल दिया, ऐसा सारा लिंक डाल दिया, अपना पोर्टफोलियो बना के एक वेबसाइट का लिंक डाल दिया, बट मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा कि मैं भाई ये सारी चीज़ों पे काम किया, देन दैट रेज्यूमे ऑफ नो यूज. दैट विल बी जस्ट एग्जैगरेटिंग कि हाँ भाई मुझे ये सारी चीज़ें आती हैं, इररेस्पेक्टिव मुझे आती हैं चाहे नहीं आती हैं. मतलब जो करो उसको अच्छे से करो, भले ही कम करो. इफ यू आर वर्किंग अपॉन ओनली फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट HTML CSS आता है, अच्छे से आता है, देन द इंटरव्यू विल बी इंप्रेस विद यू. हाँ भाई इसने जो किया अच्छे से किया है, एटलीस्ट ही विल बी एबल टू वर्क अपॉन दीस थिंग्स. एंड अगर मैं आगे इसको जावास्क्रिप्ट के बेसिस पे बोलता हूँ रिएक्ट सीख ले या एंगुलर सीख ले, तो वो सीख सकता है. दिस इज जस्ट व्हाट आई एक्सपेक्ट. Since we are on the topic of resume, ठीक है, तो like how much role does the resume play in an interview? जब तू इंटरव्यू लेने जाता है तो तू रेज्यूमे देख के कितना जज कर पाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे So too much basically what can I say
into resumes की, मतलब resume अच्छे दिखना चाहिए, जैसे अभी 5 मिनट में तुमने बोला हाँ, राइट, द टू मच तो into बेसिकली resume just plays a part of कि हाँ it just creates a first impression कि हाँ अगर उसने बहुत सारी चीजें मेंशन कर रखी है, which is take for example एक बच्चा उसने रेज्यूमे में सिर्फ मेंशन किया उसने जावास्क्रिप्ट पे और HTML पे CSS पे काम किया, उसने एक प्रोजेक्ट किया वही मेंशन किया एंड ही हैजंट लाइक, बट अगर वो मेरे पास इंटरव्यू लेके आता है, मैं सोचता हूँ हाँ ठीक है भाई इसको ये आता है, मैं इससे यही पूछूँ, मैंने उससे पूछा, उसने सब कुछ अच्छे बताया, मैंने उसको बेसिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पूछा, अच्छे से बताया, then that justifies his resume and it's okay, and since he is starting his career it is good for me, like I will give a good go ahead कि हाँ भाई ये बन जा सही। ठीक है, talk about another person, उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है बट उसका टेक्निकल स्किल उतना अच्छा नहीं है, बट उसका रेज्यूमे उसने इतना अच्छा चमका के बनाया है ना, ऐसा लाइक पता नहीं कौन कौन सा डायग्राम QR कोड भी डाल दिया, उसको स्कैन करो तो उसका वेबसाइट खुल जाता है, वो भले ही वेबसाइट उसने खुद ना बनाया हो, उस पर गिटहब का भी लिंक है। ठीक है, अब मैं उससे पूछता हूँ, अब ठीक है, नाउ आई नो कि भाई इसने अपना वेबसाइट बनाया है, ये सारी चीजें बनाई हैं, अब सिंस ही हैज डन ऑल दिस थिंग्स, मुझे ऐसा लगता है उसके बेसिक्स तो क्लियर ही है। नाउ आई स्टार्ट डिगिंग डीपर, उसको क्या क्या आता है, लाइक आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हें ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, प्लीज डोंट टेक इट इन अ रॉन्ग वे, इट इज गुड दैट यू डू दिस थिंग, बट इट इज गुड व्हेन यू डू इट ऑन योर ओन एंड यू कैन जस्टिफाई कि ये तुमने वेबसाइट कैसे बनाया, क्या यूज किया। और इफ आई जस्ट टॉक स्टार्ट डिगिंग डीपर कि इस वेबसाइट पर सिर्फ फ्रंट एंड ही है, स्टैटिक डेटा है, डायनामिक बनाना है तो कैसे करना है, या इफ आई जस्ट टेक अबाउट एग्जांपल कि एक रेज्यूमे उसने बंदे ने लिख दिया मुझे पाइथन, जावा, रूबी ऑन रेल्स, ये पता नहीं क्या क्या आता है, सब आता है। ठीक है, और भाई मैंने पाइथन का ही या जावा का ही बेसिक्स पूछा, उसने कहा कि सर अभी मैं थोड़ा सा याद नहीं है, तो मैं वही फिर दैट वे, भले उसको आता हो या उसने काम किया हो, बट ही वोंट बी एबल टू जस्टिफाई एंड दैट इज वेयर हिज इमेज और या that will create a negative impact from his resume towards me, okay he has not done all work, बस उसने मेंशन करने के लिए मेंशन कर दिया। ओके, सो अभी सिंस हम लोग रेज्यूमे और इंटरव्यू के टॉपिक पे हैं, सो इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि लोग सब कुछ उसी के लिए कर रहे हैं अभी। तो जब लोग अभी जैसे 10 मिनट पहले हमने बात की राइट कि अभी कॉलेजेस में हर बच्चा AI और NLP पे काम कर रहा है, लाइक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। सो तू उनको क्या बताना चाहेगा कि जब तुम अपने रेज्यूमे में लिखते हो कि आई नो AI या फिर आई हैव वर्कड ऑन NLP, या फिर जस्ट तूने अभी बोला राइट कि मेरे को पाइथन आता ही होता है, उसका मतलब जो इंटरव्यू लेने वाला है वो क्या समझता है, क्योंकि उसके हाँ हिसाब मतलब मैं तो ऐसा सोचूंगा ना, इसको सारा सारा मॉडल आता है, सब तरह का मॉडल पे काम किया है, ऐसा ऐसा मेंशन करो कैसा क्या, मतलब मेरे को भी उतना AI ML नहीं आता, मैंने बस ऐसे थोड़ा एक्सप्लोर किया कभी थोड़ा बहुत, तो मतलब यू शुड बी क्लियर फ्रॉम, इट शुड बी क्लियर फ्रॉम योर रेज्यूमे। इफ आई मेंशन जावा तो मैं मेंशन करता हूँ कि आई नो दीज कंसेप्ट्स इन जावा, या मैंने जावा में इतनी चीज़ों पे काम किया। इफ आई मेंशन जावास्क्रिप्ट या इफ आई मेंशन रिएक्ट तो मैं कहता हूँ कि भाई मैंने लाइक क्लास बेस्ड पैटर्न पे काम किया है, या मैंने रिएक्ट पे ही काम किया, रिडक्स पे काम नहीं किया है। I explain it to my interviewer कि मैंने क्या क्या चीजें की हैं। ठीक है, like since intern I don't think they would be knowing all of, like since I won't say interns, like yeah, if I just talk about college students, so they are still in an exploring phase, they are not like very close to industry, तो उनको ये चीजें नहीं पता होती कि ये टेक्नोलॉजी सब मेंशन तो कर दी, बट इन टेक्नोलॉजीज के साथ क्या आता है। इफ अ पर्सन जस्ट मेंशन कि हाँ मुझे रिएक्ट आता है, ठीक है उसको रिएक्ट आता होगा बट उसको जावास्क्रिप्ट बेसिक क्लियर नहीं है, तो उसका रिएक्ट आने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू पहले रिएक्ट नहीं पूछेगा, तुमसे जावास्क्रिप्ट पूछेगा। जब तू जावास्क्रिप्ट अच्छे से बताएगा तब वो तेरे से रिएक्ट पूछेगा, स्टार्ट मतलब स्टेट प्रॉप्स और स्टेट मैनेजमेंट रिडक्स पे आएगा। ठीक है, एक जस्ट एन एग्जांपल। वही वो घूम के बेसिक पे आ गया वो। हाँ, मतलब जिससे वो चीज बनी हो एग्जैक्टली। हाँ, तो अभी जैसे तो तू लोग क्या बोलना चाहिए, कब तुमको वो ऐड करना चाहिए अपने रेज्यूमे की, कितना नॉलेज होना चाहिए तुमको जब तुम ऐड हाँ करो जैसे कि तुम्हें बेसिक से ज्यादा नॉलेज है, देखो इफ आई टेक एन एग्जांपल, अगर कोई रिएक्ट पढ़ने जा रहा है उसको पहले जावास्क्रिप्ट पढ़ना चाहिए, जावास्क्रिप्ट से पढ़ लिया, रिएक्ट पे उसने वेबसाइट बनाया तो उसे मेंशन करना चाहिए उसने जावास्क्रिप्ट रिएक्ट पे काम किया है। फिर उसने अगर रिएक्ट पे जो वेबसाइट बनाया उसको खूब सारे स्टेट मैनेजमेंट किया, रिडक्स यूज किया, उसको मेंशन करना चाहिए उसने रिडक्स किया। अब उसने सिर्फ ये स्टैटिक वेबसाइट नहीं बनाया, उसने एक डायनामिक वेबसाइट बनाया जो पीछे बैकएंड को भी कॉल करता है, तो बैकएंड तेरा मान ले पाइथन पे भेज दिया तो उसको, और उसने पाइथन में क्या किया, उसको जैंगो यूज करके रेस्ट एपीआईज लिख रखा है। ठीक है, तो उसको मेंशन करना चाहिए कि उसने पाइथन किया है, बेसिक पाइथन आता है और पाइथन में जैंगो यूज करके उसने रेस्ट एपीआईज बनाया। दिस वे इंटरव्यू भी क्लियर, अच्छा इसने वेब बेस्ड एप्लीकेशंस बनाई है, इसने बैकएंड और फ्रंट एंड अलग अलग बनाया, बैकएंड में इसने रेस्ट एपीआईज बनाई है। जस्ट एन एग्जांपल, दिस वे इंटरव्यू भी क्लियर कि अच्छा इसने ये चीजें की हैं, लेट्स टॉक अबाउट दीस थिंग्स ओनली। अब पाइथन में उसने क्या काम किया है क्या नहीं किया, से सिर्फ पाइथन मेंशन कर दिया, पाइथन में पता नहीं कितनी लाइब्रेरीज हैं, फ्लास्क है, जैंगो है, पता नहीं क्या क्या, हो तो कुछ भी पूछ लेगा तुमसे, तब तुम कैसे बताओगे। सो
अभी ना एक और चीज है जो हर कोई मतलब लिखता ही है अपने रिज्यूमे में, वो है जावा। ठीक है, अब सिंस तरफ फेवरेट टॉपिक है तो इस पे आते हैं हम लोग। तो एक जोक चलता है हमारे यहाँ पे कि तो पुणे में ना रैंडमली किसी को भी पूछेगा ना, कोई अगर किसी क्लास के लिए जा रहा है, वो तो कौन से क्लास में जा रहा है, वो तीन में से आंसर दे, या तो एमपीएससी या तो यूपीएससी या तो जावा। तो तो जिस एक पता कि भाई वो तो जावा बहुत वास्ट है, राइट? सो मतलब मेरे ख्याल से सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही वास्ट है। हाँ, मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि जस्ट टेल पीपल कि व्हाट इज द राइट वे ऑफ लर्निंग जावा। जस्ट डोंट जंप इनटू इट, कोई क्लास लगा लेते हैं फिर उसके हिसाब से फिर उनका होता है ना एडवांस जावा, और वो पता नहीं बहुत कुछ होता है उनका। तो लाइक व्हाट इज द राइट वे ऑफ लर्निंग जावा, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है वो लैंग्वेज। देखो जावा ऐसा है, इफ आई टॉक अबाउट लार्ज एंटरप्राइज एप्लीकेशंस, सो लार्ज एंटरप्राइज एप्लीकेशन कैसे हो गया, मतलब बेसिकली इंटरप्राइज लेवल पे जैसे अपना आईबीएम का कोई एप्लीकेशन है जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं, या अपना किसी लाइक जस्ट टेक एग्जांपल, आई एम नॉट श्योर अबाउट स्विगी का बैकएंड किससे बना है, जस्ट टू टेक एग्जांपल स्विगी का लॉगिन मॉडल हो जावा पे बना हो शायद, या स्प्रिंग पे बना हो। लाइक इफ आई टॉक अबाउट लार्ज एप्लीकेशन, लार्ज enterprise applications, तो वहाँ पे जावा beats every language and it has progressed a lot. So वो है, but if I talk about mentioning that you know Java, तो आप clear cut mention करो, since college student must not have been having like exposure to Java frameworks. So Java is a language and Java के ऊपर जैसे JavaScript के ऊपर frameworks हैं Angular, React, Node, Vue.js, Next.js, बहुत सारे JS हैं, ठीक है। तुमको जरूरी नहीं वो सारे frameworks पता हो, बट तुम्हें basic JavaScript पता है, तुम वो मेंशन कर सकते हो। सिंपली जस्ट मेंशन कि अगर आप कोर जावा पे काम किया है तो मेंशन अबाउट कोर जावा, एंड देन उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जावा में। इफ आई टॉक अबाउट देन देयर कम्स एज लाइक मल्टी थ्रेडिंग का मॉड्यूल है, कॉन्करेंसी है जावा में, एंड देन देयर आर वेरी लॉट ऑफ फ्रेमवर्क्स इन जावा, स्प्रिंग है, हाइबरनेट है, स्ट्रट्स तो अब शायद यूज नहीं होता ज़्यादा, सो लाइक स्प्रिंग बूट है, देन स्प्रिंग क्लाउड है, जैसे बहुत सारी चीजें हैं। सो यू नीड नॉट टू नो एवरीथिंग, बट जो आपको पता है जस्ट मेंशन क्लियर कट कि यू नो अबाउट कोर जावा। सो आई गेस कोर जावा, एडवांस जावा सबको पता ही है, so that nothing as there is nothing as advanced Java, ठीक है। Basically that are advanced concepts of Java which are basically later on like required in every framework. So basically advanced Java, if I talk about, basically it has like collection. If I talk about collections, so basically collections is a like a data structure का एक Java ने, अब जैसे if I talk about C में अगर तुम्हें लिंक लिस्ट बनानी है तो तुम्हें पूरा स्क्रैच से लिंक लिस्ट का कोड लिखना पड़ेगा। तो जावा क्या करता है, नहीं तुम्हें लिंक लिस्ट बनानी है, एक नया वेरिएबल न्यू करके डिफाइन करो और लिंक लिस्ट बना लो कलेक्शन फ्रेमवर्क यूज करके। तो दिस इज बेसिकली एडवांस जावा फॉर कॉलेज स्टूडेंट, बट दिस इज बेसिकली बेसिक्स फॉर इफ आई टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो जिसको 2 साल या 1 साल का एक्सपीरियंस है उसको याद नहीं चाहिए इफ ही सेज कि उसने जावा पे काम किया। Then if I talk about advanced concepts in Java, then there comes generics, and then there comes multi-threading, concurrency in Java, concurrent collections, बहुत सारी चीजें हैं। तो just be clear कि बेसिक क्या है जावा के। So if I talk about अगर किसी को कॉलेज लेवल पे जावा सीखनी है, so I guess Java 8 के बाद तो Oracle has like withdrawn its support of like providing free Java, so Java 8 तक you can easily learn। और Java 8 के docs और tutorials आपको आराम से लाइक ऑफिशियल ओरेकल के डॉक्यूमेंट्स आराम से मिल जाएंगे, वहाँ से सीखिए, बहुत अच्छे हैं उसमें। यू विल गेट असाइनमेंट्स एंड एक्सरसाइज एज वेल, वो भी आप कर सकते हो। इट विल बी वेरी हेल्पफुल आई वुड से टू लर्न बेसिक्स ऑफ जावा, एंड देन फ्रॉम देयर इफ यू वांट टू पिक अप जावा एज ए कोर लैंग्वेज, देन यू कैन मूव टू स्प्रिंग बूट या कोई और लाइक स्प्रिंग क्लाउड related frameworks, and then you can learn advanced concepts of programming using that. So if I talk about why people prefer Java, is like a lot of programming concepts, a lot of software engineering concepts comes along with Java जो आपके clear हो जाएंगे। So तो that is one of the reasons I would say। तो जावा सीखने के लिए कौन से छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, या फिर कोई वेबसाइट्स है जिसपे तूने सीखा हो? हाँ, तो वेबसाइट मैंने बताया ना, ये जावा का ऑफिशियल डॉक है, तो आप Oracle मतलब इफ यू विल जस्ट गूगल इट और लाइक ऑफिशियल जावा 8 डॉक, तो आपको आराम से मिल जाएगा, वहाँ से भी आप सीख सकते हो। एंड इफ आई जस्ट टॉक अबाउट, तो दैट विल बी बेसिकली इफ यू आर वेरी न्यू टू प्रोग्रामिंग या आपको एकदम ही जावा नहीं आती, तो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। सो वंस यू आर डन विद दैट, देन यू कैन बेसिकली स्टार्ट विद मेकिंग, सो सिंपल जावा, कोर जावा सीख के आप कोई एप्लीकेशन आई वोंट थिंक यू विल बी एबल टू मेक। सो यू कैन मेक स्मॉल गेम्स लाइक टिक टैक टो, या ऐसे लाइक छोटे मोटे गेम्स आप बना सकते हो, बट इफ यू वांट टू बेसिकली like build a proper application using Java, then you have to basically move towards a framework, so basically you have to use Spring या something उसको
प्रॉपर उसमें लाइक स्प्रिंग में बेसिकली रेस्ट एपीआईज कैसे बनाते हैं, या आपका व्हाटएवर योर लाइक गोल इज फॉर, इफ यू जस्ट टेक एन एग्जांपल लाइक जावा में आपको मान लो कुछ लाइक विंडोज एप्लीकेशन बनानी या डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना, तो जावा एफएक्स और जावा एफएक्स ऐसे करके, मतलब जावा एफएक्स करके आगे होता है, तो वो फ्रेमवर्क सीखना पड़ेगा। तो वो लेटर ऑन चीज़ होंगी। बेसिकली दैट पार्ट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि आप आगे क्या करना चाहते हो जावा को यूज करके। अब सिंस हम लोग एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो तेरे को क्या लगता है कि स्टूडेंट्स ने ऐसे लैंग्वेज स्पेसिफिक जॉब्स लेने चाहिए क्या, जैसे होता है जावा डेवलपर, पाइथन डेवलपर? तो हाँ, वो तब हो सकता है if you are very much expertise into a particular language and you can crack that interview. So basically your path will be very much typical towards language only, कि आपको इसी में काम मिल रहा है, यही कर रहे हो आप। But it totally depends upon कि आपको कैसा करना है। So like if I talk about service based industries, तो वो basically ऐसी jobs निकालते हैं कि Java software engineer या Python based software engineer, basically they have that kind of requirement. But if I talk about product based industries, so their requirement is very much clear that your data structure algorithm and basic should be clear. So आपका वो clear है, then they don't worry about कि आपको सिर्फ एक ही language आती है, या Java ही आती है, Python ही आती है। They basically like want a mixture of languages you should know. You should know C, Java, Python, JavaScript. तो वो उसमें सबका थोड़ा आता है, then they are good with that. But your like रीजनिंग और एनालिटिकल स्किल्स अच्छे होने चाहिए, तो वहाँ पे वो उस पे जैसे जज करते हैं। बट इट्स एब्सोल्युटली फाइन आप पर्टिकुलर लैंग्वेज पे फोकस करके पर्टिकुलर लैंग्वेज के बेसिस पे जॉब ढूंढते हो, दैट विल बी योर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ करियर। बट लेटर ऑन यू विल रियलाइज कि ओनली लर्निंग वन लैंग्वेज इज नॉट सफाइस, यू विल हैव टू मूव विद अ लॉट ऑफ more options and you have to explore a lot of things. So you should just not restrict up to a single language. आपको जितना सीख सकते हो उतना सीखना चाहिए मेरे ख्याल से। सो अभी हम लोग पॉडकास्ट के एंड में आ गए हैं, ठीक है। सो सिंस अभी तूने 4 साल काम किया, लाइक 4 साल हो गए लगभग, राइट? 5 साल लगभग। 5 साल, हाँ। तो अभी जो बच्चे अभी स्टार्ट करेंगे इस साल या फिर अगले साल, तो ऐसे कौन से मिथ्स हैं जो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोगों के दिमाग में, अच्छा ये काम होता है इसका, जो कि आपको में एक्चुअल क्या काम होता है, लाइक बेसिकली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम क्या होता है, और कौन से इज अ सॉफ्टवेयर, मिथ से जो बस्ट करना चाहते थे यहाँ पे कि भाई ऐसा नहीं होता है? ऐसे मिथ्स तो मुझे नहीं पता, मतलब बट ऐसे लाइक ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर लैपटॉप नहीं बनाते हैं, ऐसा ऐसा मिथ मतलब मुझे नहीं लगता है कोई मिथ होगा ये, मतलब इंडियन आंटीज का या इंडियन हाउस होल्ड वुमेन्स का ये मिथ होता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए तो मेरा मोबाइल बना देगा या मेरा लैपटॉप, मतलब दिस इज वेरी जेनरिक काइंड मैं ऑफ। मतलब ऐसे बोल रहा था कि इन जनरल कॉलेज के जो बच्चे होते हैं ना, उनके दिमाग में भी होता है कि अच्छा ऐसे काम करना होगा। मतलब जो अब अगर मैं बेस्ट एग्जांपल दूं, तो मैं सीधा कोड लिखना शुरू कर दूंगा, मतलब एकदम प्रोडक्शन लेवल पे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नहीं इसलिए बच्चे अपना नहीं, ये नहीं होता। में एआई वगैरह लिखते हैं ना, क्योंकि उनको लगता है कि मैं सीधा इस पे ही काम करना शुरू करूंगा किसी भी कंपनी में नहीं जाके। नहीं, हाँ तो दिस इज अ मिथ कि आप आते ही प्रोडक्शन लेवल का कोड लिखने लगोगे, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसे थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करने का टाइम दिया जाता है, and you will be when you will go to a lot of like coding practices and then प्रोडक्ट स्ट्रक्चर कैसा है, क्या कोडिंग प्रैक्टिस हम यूज कर रहे हैं, क्या डिजाइन पैटर्न यूज कर रहे हैं, उसके बेसिस पे यू हैव टू फॉलो दैट कोडिंग स्टाइल, देन ओनली यू कैन राइट अ प्रोडक्शन लेवल कोड। सो इफ यू स्टार्टिंग विद अ जॉब, तो आपको शुरू में ये सारी ट्रेनिंग मिलती है हर कंपनी में। बट ऐसा आप आते ही ऐसा सोलार पे जाके फुल टेक सर्च नहीं इम्प्लीमेंट करोगे, ऐसा कभी नहीं मिलेगा। Until and unless it is a very startup kind of an environment and you have a lot of software engineering experience, then you're definitely going to learn a lot of things and you're going to start with a like a massive क्या कहते हैं like there will be a like अगर आप you're going like आपको पहले से बहुत सारी software engineering experience है, you have done a lot of things, you have been participant of Google Summer of Code, Google Summer of Code में आपने काम किया है, like you have taken part into that and then you have been part, like if I talk about there are like a lot of IITians like right now who are working upon these kind of things, और जिन्होंने like they already have a lot of exposure, या उन्होंने अपने कॉलेज के लिए बहुत सारा काम किया है, they were part of like they were very geeky into their college time and they have explored a lot of things। हाँ, अगर वो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं जॉब, हाँ उनको भी थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा, बट दे विल बी लाइक like having a like उनके पास स्टैगर होगा थोड़ा ज़्यादा आपसे, तो थोड़ा सा आगे होंगे, वो हो सकता है। बट इफ़ यू टॉकिंग स्टार्टिंग विद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब, और जहाँ पे आपको बेसिक एक्सपोजर है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, तब आपके साथ ऐसे ही होगा कि यू विल बी गिविंग सम टाइम एंड लिबर्टी, आपको छोटी मोटी चीज़ें कराई जाएंगी शुरू में, you will be getting some time to explore things and then you will be pushed into
आप चलो स्टार्ट करो प्रोडक्शन लेवल का कोड लिखना। ऐसा नहीं होगा कि आपको तुरंत आती है, ऐसा कोई एकदम सा ऐसा लो ये एंड्रॉइड एप्लीकेशन स्क्रैच से बना हो, ऐसा नहीं होता है कहीं पे। वो until and unless the project into pilot phase और आपको मिल रहा है, that is very good opportunity to learn. But in most of the cases, in I guess 80% of the cases, you will be working into already ongoing projects, और वहाँ पे धीरे धीरे आपको चीजें पिकअप करने को मिलेंगी। एंड लाइक इवन स्मॉल चीजें, लाइक जिस तरह से कोड किया जाता है जब हम लोग कॉलेज में कोड करते हैं, राइट, लाइक इवन स्मॉल चीजों में कितना डिफरेंस होता है। लाइक तुम रैंडम कॉलेज में कोड कर दो, रैंडमली वेरिएबल का नाम दे जा रहा हूँ इंट है, वो सारी, so basically that comes into coding practices, तो वो आपको सब जगह सिखाया जाएगा। So this is like आप कॉलेज में आप तो अपना कोड लिखते जाते हो, but there is some part is called maintenance as well। वो कोड कभी like there's like that code also goes into like कि हाँ कहीं पे break हो रहा है कोड प्रोडक्शन पे, so some like production support guy would be able to read it, so that is called basically maintainability of code। So to maintain that, you have to put proper comments and proper variables so that it is very much readable and can be fixed quickly। So वो सारी चीजें come parts come to code, these things comes into like coding practices, and that will be taught into your like first job, I would say। And from there only you will come to know, yeah, these are the coding practices and this should be followed। So this is one of the things which you are going to learn into your like first job। सो जो भी लोग देख रहे हैं उन्होंने काफी कुछ सीखा होगा अभी कि क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो आगे जब वो जॉब करेंगे, राइट। सो थैंक यू रोहन फॉर गिविंग योर टाइम। Thank you Ganesh for inviting me। अगली बार हम लोग वापस आएंगे किसी और सब्जेक्ट को लेके। Definitely, like this is just a casual talk, so like there are a lot of things which can happen out of this, like whatever we have talked about, this is basically based upon our experiences, and इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, people are exploring a lot of things, so I would just give a suggestion कि you should just not go by our words, you should explore your things as well and like pick up things which are best for you। Yes, that's a very wise words। Thank you। So this is the end of the podcast। Thank you Rohan। चलो bye। Bye।